Hello students. In this video we are going to discuss about the enzyme kinetics and in enzyme kinetics we are going to deal with the topic concept and types of inhibitors. Now concept and types of inhibitors there what is inhibitor? It inhibits the reaction, it inhibits the binding of the substrate to the active site of the enzyme, that is the inhibitor. अगर आप सिर्फ inhibitor की definition देखेंगे तो inhibitor means to stop. Okay, when inhibitor bind to the active site or catalytic site of the enzyme, there will be no product formation because it has inhibited the reaction, so ultimately the product formation will stop. Okay, so mainly there are two types of the inhibitors: reversible inhibitor and irreversible inhibitor. Now what are reversible inhibitor? Reversible inhibitors, they interact with the enzyme in the reversible fashion and can be removed from the enzyme by methods like dilution or dialysis. Okay, so removal of this reversible inhibitors can restore the enzyme activity, क्योंकि हम वो inhibitor एक बार वो attach हो गया active site और catalytic site of the enzyme में, तो वो निकाला जा सकता है. Okay, and there will be attachment of the substrate and it will lead to the product formation. तो enzyme की activity restore हो सकती है. But in case irreversible inhibitors, these inhibitors cannot be removed from the active site of the enzyme. Okay, so that are the irreversible inhibitors. Now there are three categories or three types of the reversible inhibitors, that is competitive inhibitor, अनकॉम्पिटेटिव इनिबिटर एंड नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिटर. तो ऐसे थ्री क्लासेस है ऑफ द इनिबिटर्स. अब ये जो थ्री क्लासेस है इनके इक्वेशंस भी है, इनके डेरिवेशंस भी है, और डेरिवेशंस के हिसाब से हम माइकलिस मेंटेन प्लॉट फॉर कॉम्पिटेटिव इनिबिटर, लाइन वीवर बर्क plot for competitive inhibitor, Michaelis-Menten plot for uncompetitive, Michaelis-Menten for non-competitive, ये सब डेरिवेशन निकाल कर हम प्लॉट भी ग्राफ भी प्लॉट करें. ओके, दैट वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो. इट इज मैथमेटिकल पार्ट. इन दिस वीडियो वी आर जस्ट डीलिंग विद द कंसेप्ट कि वो क्या है, ये इनिबिटर्स क्या है, इनका रोल क्या है, इनका फंक्शन क्या है. ठीक है, तो लेट्स स्टडी द फर्स्ट इनिबिटर, दैट इज कॉम्पिटेटिव इनिबिटर. So this is known as the competitive inhibitions. Now what are competitive inhibitor? हम थियोरेटिकल पार्ट नहीं देखेंगे, ये रिएक्शन से ही हम समझेंगे कि व्हाट आर कॉम्पिटेटिव इनिबिटर्स. नाउ सी द जनरल रिएक्शन इज बीन शोन, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट कन्वर्ट्स इनटू द एंजाइम सबस्ट्रेट एंड देन देयर इज फर्दर फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट विद द रिलीज ऑफ द एंजाइम. नाउ in competitive inhibitor, as the name indicates, there is competition. किसके बीच में कंपटीशन होता है? कंपटीशन बिटवीन इनिबिटर एंड सबस्ट्रेट टू बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, बिकॉज दिस एंजाइम कंटेन जस्ट वन एक्टिव साइट. ओके, सो द स्ट्रक्चर ऑफ इनिबिटर एंड द सबस्ट्रेट इज समवॉट सेम. तो वहां पर उन दोनों के बीच में क्या होता है? कंपटीशन होता है कि कौन जाकर एंजाइम की कैटालिटिक साइट में बाइंड होगा. अगर सबस्ट्रेट बाइंड हो जाता है तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, लेकिन अगर इनिबिटर बाइंड होता है तो देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, द रिएक्शन विल इनिबिट और द रिएक्शन विल स्टॉप. अब ये किस पे डिपेंड होता है कि इनिबिटर बाइंड होगा या सबस्ट्रेट बाइंड होगा? तो उनके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड होता है. ओके, इफ इनिबिटर कॉन्सेंट्रेशन इज मोर than the substrate concentration, then definitely inhibitor is going to bind to the active site. But if substrate concentration is more than the inhibitor, then substrate will bind to the active site and will lead to the formation of the product. ये एक main idea है of the competitive inhibitor. Just there is competition between inhibitor and the substrate to bind to the active site of the enzyme. And why there is competition? Because the structure of this substrate and inhibitor is similar, is same. ओके, और कैसे डिपेंड होता है? जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा वो जाकर बाइंड होगा टू दैट एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन फर्दर डेरिवेशन इज देयर, जो हम अगले वीडियो में स्टडी करेंगे. ओके, द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटेटिव इनिबिटर इज सक्सीनेट, मीन्स मैलोनेट इज कॉम्पिटेटिव इनिबिटर फॉर सक्सीनेट सबस्ट्रेट हुज एंजाइम इज सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस. ओके, तो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव इनिबिटर क्या है? मैलोनेट है. किसका कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है? सबस्ट्रेट कौन सा है? सक्सीनेट.
ओके, एंजाइम कौन सा है? एंजाइम इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस विच कन्वर्ट्स सक्सिनेट इनटू फ्यूमारेट. अब ये दोनों क्यों एक दूसरे के कॉम्पिटिटिव से, सक्सिनेट और मैलोनेट? बिकॉज यू कैन सी द स्ट्रक्चर, बोथ स्ट्रक्चर कंटेन्स द 2 कार्बोक्सिल ग्रुप. ओके, दोनों स्ट्रक्चर में क्या है? 2 कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है. सो देयर इज कॉम्पिटिशन बिटवीन दिस 2 मॉलिक्यूल, सक्सिनेट एंड मैलोनेट. सो दिस इज द सिंपल कंसेप्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स. नाउ व्हाट आर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स? Here the structure of enzyme contains the active site plus allosteric site. Okay, the site other than the active site is known as the allosteric site. मतलब यहाँ पर आप क्या है, इनहिबिटर अलग जगह बाइंड होगा एंड सबस्ट्रेट अलग जगह बाइंड होगा. मीन्स देयर आर चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट. Now what is the logic? I'll show you the reaction so that it will be more clear to you. So this is the reaction. See, enzyme plus substrate get converted into the enzyme substrate, further it converts into the product. Now this inhibitor, अभी inhibitor कहाँ जाकर bind होगा? Inhibitor can bind to the free enzyme and form the EI complex. Okay, this inhibitor can also bind to the ES complex and form the ESI complex. Okay, तो यहाँ पर कितने complex form होते हैं? Free enzyme plus ES कॉम्प्लेक्स प्लस ESI कॉम्प्लेक्स. ओके, तो ये आपका टोटल एंजाइम हो गया. सो यहाँ पर 3 कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं. तो इनहिबिटर एक तो फ्री एंजाइम में बाइंड हो जाएगा, नहीं तो जहां पर सबस्ट्रेट बाइंड है वहां पर जाकर ये इनहिबिटर बाइंड होगा. डायग्रामेटिकली भी दिखाया गया है. अब जो ESI कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उस एंजाइम में सबस्ट्रेट भी है और इनहिबिटर भी है. सो दिस इज नोन एज द डेड एंड कॉम्प्लेक्स. व्हाई इट इज नोन एज द डेड एंड कॉम्प्लेक्स? बिकॉज इनहिबिटर बाइंड हुआ है, दो सबस्ट्रेट इज बाइंड बट देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट बिकॉज इनहिबिटर हैज बीन बाउंडेड टू दैट ES कॉम्प्लेक्स. सो इट इज नोन एज द डेड एंड कॉम्प्लेक्स. मतलब सबस्ट्रेट बाइंड हुआ है बट इट इज ऑफ नो यूज बिकॉज देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट. Okay, so that is the simple concept of the non competitive inhibitor. There is no competition. यहाँ पर कोई competition नहीं है between substrate and inhibitor क्योंकि यहाँ पर different sites है. लेकिन ये inhibitor की condition है. क्या condition है? Either it will bind to the free enzyme or it will bound to the enzyme substrate complex and form the EI and ESI complex respectively. मैंने जैसे कि आपको कहा हर inhibitor का derivation है, तो इसमें नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का फाइनल डेरिवेशन सॉल्व कर कर जो हमें मिलता है, इट इज V0 इज इक्वल टू Vmax इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S अपॉन अल्फा Km. नाउ व्हाट इज योर अल्फा? यहाँ पर अल्फा है 1 प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनहिबिटर अपॉन Ki. ओके, Km प्लस अल्फा डैश क्या है यहाँ पर? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S अपॉन Km प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस गेट कट एंड फाइनल इक्वेशन आपको ये मिलता है. अब ये कैसे मिला है ये अगले वीडियो में आपको क्लैरिफाई हो जाएगा. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन यहाँ पर Michaelis-Menten प्लॉट means according to this equation we have plotted the Michaelis-Menten graph for non-competitive inhibition and Lineweaver-Burke plot for non-competitive inhibition. Same is with the other types of the inhibitors. अब यहाँ पर आप देख सकते हो तो यहाँ पर क्या हो रहा है? As inhibitor is bind, तो यहाँ पर जो Km है that is the substrate concentration it will remain same and Vmax that is the maximum velocity it will decrease. ग्राफ से वो क्लियर हो रहा है. ये कैसे डिक्रीज हो रहा है ये आपको अगले वीडियो में और क्लैरिफाई होगा. बिकॉज सी यहाँ पर इनहिबिटर क्या कर रहा है? इनहिबिटर इट इज ब्लॉकिंग द फ्री एंजाइम as well as it is blocking the enzyme substrate complex. Okay, तो there are no chances to bind to the substrate. अगर फिर भी हम substrate concentration increase करते हैं as that of the competitive inhibitor, but in this type of inhibitor though we increase the substrate concentration it will not allow to reach the Vmax क्योंकि inhibitor already bind हो चुका है. इसीलिए यहाँ पर Vmax क्या है? It goes on decreasing and concentration of S क्या सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा यानी कि Km क्या होगा? इट विल रिमेन अनचेंज्ड और इट विल रिमेन कांस्टेंट और इट विल रिमेन सेम. बाय द ग्राफ यू कैन सी, पहला ग्राफ है लाइनवीवर-बर्क प्लॉट का. यहाँ पर जो रेड डॉटेड में रेड लाइंस में दिखाया गया है इट इज द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और जो ब्लू लाइन में दिखाया गया है इट इज द नॉर्मल
लाइन वीवरबर्ग लाइन, ओके। और यहाँ पर जो इंटरसेप्ट है दैट इज ऑन द एक्स एक्सिस, दैट इज -1/km, मतलब वहाँ पर क्या है, इट इज द km विच इज सेम फॉर बोथ दी, लेकिन यहाँ वी मैक्स क्या है, डिफरेंट है, विच इज डिक्रीजिंग। अब ये रिसिप्रोकल है, इनवर्स है, ओके। डबल रिसिप्रोकल है, जो हमने देखा प्रीवियस वीडियो में, डबल रिसिप्रोकल है मतलब जो ऊपर लाइन जा रहा है ये स्लोप, इट डजेंट इंडिकेट दैट इट इज इंक्रीजिंग, इट इंडिकेट्स दैट इट इज डिक्रीजिंग, ओके। द अपवर्ड slope indicates it is decreasing. So here Vmax is decreasing. Same is the case with the Michaelis-Menten plot for non-competitive inhibitor. जो ब्लू कलर के लाइन में दिखाया गया है, इट इज विदाउट इनिबिटर, दैट इज नॉर्मल कर्व फॉर द Michaelis-Menten प्लॉट, और जो रेड लाइन में दिखाया गया है इट इज विद इनिबिटर। अब यहाँ पर Km इज द सेम फॉर बोथ, बट here Vmax is decreasing, okay. So that is about the non-competitive inhibitor. Next is the next is the uncompetitive inhibitor. Now uncompetitive inhibitor में क्या होगा, as the name indicates that there is no competition between any type of the inhibitors, ना enzyme के ना substrate के बीच में कंपटीशन है टू बाइंड टू द इनिबिटर, ना इनिबिटर के बीच में कंपटीशन नहीं है, ओके। सो व्हाई देयर इज नो कंपटीशन, यहाँ पर रिएक्शन नहीं दिखाई गई है। इसकी रिएक्शन कुछ इस तरीके से है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट गिव्स एंजाइम सबस्ट्रेट, then further it lead to the formation of product. Now question arises where the inhibitor will bind. So inhibitor binds only to the enzyme substrate complex, okay. यहाँ पर inhibitor कहाँ bind होगा, it will just bind to the enzyme substrate complex. तो reaction कैसी होगी, enzyme substrate plus inhibitor gives the ESI complex, that is enzyme substrate inhibitor complex. अब यहाँ पर तो दोनों चीजें डिक्रीज होगी, ओके। Vmax भी डिक्रीज होगा और Km भी डिक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि ले इनिबिटर एंजाइम सबस्ट्रेट में जाकर डायरेक्टली बाइंड हो रहा है, मींस इनिबिटर नीड्स द सबस्ट्रेट फॉर बाइंडिंग। सो दिस यहाँ पर भी डेड एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है ESI, बिकॉज दो सबस्ट्रेट इज बाउंड but inhibitor is also bounded, okay. So due to the binding of inhibitor there will be no formation of the product and it will lead to the decrease in the both the values, that is Vmax and Km, okay. So यहाँ पर फाइनल इक्वेशन आपको मिलता है V0 is equal to Vmax into concentration of S upon Km plus alpha dash into concentration of S. So what is alpha dash, वो यहाँ पर उसकी वैल्यू दी गई है, ये आपको डेरिवेशन के थ्रू ये आपको फाइनल इक्वेशन मिलता है, ओके। यू हैव टू जस्ट कंपेयर दिस इक्वेशन विथ Michaelis-Menten इक्वेशन एंड प्लॉट द ग्राफ। यहाँ पर लाइन वीवरबर्ग प्लॉट दिखाया गया है, दोनों के लिए डिफरेंट है। सी ब्लू कलर के लाइन में दिखाया गया है नॉर्मल, and red line is shown with the inhibitor, that is uncompetitive inhibitor. What slope goes in the upward direction, that is both the values Vmax is decreasing as well as Km is also decreasing. Why these are decreasing, क्यों decrease हो रहा है, because यहाँ पर substrate free नहीं है। इनिबिटर कहाँ बाइंड हुआ है, इनिबिटर इज बाउंडेड टू द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ओके। सो देर आर नो चांसेस टू इंक्रीज एनी वैल्यू, नाइदर Vmax is increased nor Km is increased, so both are decreasing, both are in the decreasing position just due to binding of inhibitor, okay. So this is about the uncompetitive inhibition. The next is the allosteric inhibition. ये different concept है। Allosteric inhibition means what? Allosteric site means the site other than the active site of the enzyme is known as the allosteric site. अब ये allosteric inhibition Michaelis-Menten इक्वेशन या फिर Michaelis-Menten डेरिवेशन नहीं फॉलो करता है, Michaelis-Menten प्लॉट नहीं फॉलो करता है। एज Michaelis-Menten प्लॉट इज हाइपरबोलिक बट दिस एलोस्टेरिक इनहिबिशन प्लॉट इज समवॉट सिग्मोइडल कर्व है, तो ये Michaelis-Menten फॉलो नहीं करता है। सो यहाँ पर दिखाया गया है विथ पॉजिटिव मॉडिफायर सिग्मोइडल कर्व एंड निगेटिव मॉडिफायर। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एलोस्टेरिक एंजाइम्स, तो इट इज समवॉट रिलेटेड टू एलोस्टेरिक इनहिबिशन। लेकिन हमें जो इन सिलेबस इंक्लूडेड है, दिस 3 टाइप्स ऑफ इनहिबिटर आर वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटेटिव, नॉन कॉम्पिटेटिव एंड अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स विद द डेरिवेशन एंड द ग्राफ्स, okay. So this is all about 3 types of inhibitor. I hope you might have understood this 3 types of inhibitors. ये और क्लियर हो जाएगा जब हम डेरिवेशन सॉल्व करेंगे, जो आपको अगले वीडियो में
मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू।